یہ میرا ہی ہے، اللہ نے اسے میری کوک سے نہیں میرے نصیب سے بھیجا ہے۔ ڈائن، میرا قیمتی قالین خراب کر دیا، مفت کی روٹیاں توڑتی ہیں اور اوپر سے نقصان بھی کرتی ہے۔ تو نامرد ہے، کھانے کو نہیں لا سکتا تو شادی کیوں کی؟ بغداد کے ایک پرانے شانت محلے میں ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا مکان تھا۔ اس میں احمد اور زینب رہتے تھے۔ دونوں نیک تھے، نمازی تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، مگر ان کے گھر کی دیواروں نے کبھی بچے کی کلکاری نہیں سنی تھی۔ شادی کے 20 سال گزر چکے تھے۔ زینب کی راتیں آنسوؤں میں اور دن دعاؤں میں گزرتے۔ جب وہ پڑوس کی عورتوں کو اپنے بچوں کو لوری گاتے سنتی تو اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ احمد اسے سمجھاتے، زینب، مایوسی کفر ہے، اللہ جب دینا چاہے گا تو چھپر پھاڑ کر دے گا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ احمد اور زینب عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹ رہے تھے، تبھی بجلی کڑکی اور کسی بچے کے رونے کی آواز سناٹے کو چیر گئی۔ آواز پاس کی جھاڑیوں سے آ رہی تھی۔ زینب کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے دوڑ کر جھاڑیوں کو ہٹایا۔ وہاں کیچڑ اور بارش کے پانی کے بیچ ایک پرانے کمبل میں لپٹا ایک نوجات ششو پڑا تھا۔ نیلا پڑ چکا شریر، بند مٹھیاں اور روتے روتے سوکھ چکے ہونٹ۔ زینب نے ایک پل کی بھی دیری نہیں کی، اس بھیگے ہوئے وجود کو اٹھا کر اپنے سینے سے چپکا لیا۔ اس کی گرماہٹ ملتے ہی بچے کا رونا سسکیوں میں بدل گیا۔ احمد نے اپنی شال ان دونوں پر ڈال دی اور کہا، زینب، جلدی گھر چلو، لگتا ہے فرشتوں نے ہماری دعاؤں کی لاز رکھ لی ہے۔ خون سے بڑھ کر رشتہ گھر لا کر زینب نے بچے کو گرم پانی سے نہلایا، سوکھے کپڑے پہنائے اور بکری کا تازہ دودھ پلایا۔ جب اس ننھی جان نے اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں کھول کر زینب کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکان دی تو زینب وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے احمد سے کہا، جی دیکھیے نا، یہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ یہ میرا ہی ہے، اللہ نے اسے میری کوکھ سے نہیں میرے نصیب سے بھیجا ہے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا عامر، یعنی آباد کرنے والا، اور سچ میں اس نے ان کی ویران دنیا آباد کر دی تھی۔ بچپن کی شرارتیں اور ماں کی دیوانگی، عامر اب گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا۔ زینب اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ کھانا بناتی تو عامر کو رسوئی کے پاس بٹھا لیتی، نماز پڑھتی تو عامر اس کی جانماز مصلی پر کھیلتا رہتا۔ کبھی وہ زینب کی پیٹھ پر چڑھ جاتا تو کبھی احمد کی داڑھی کھینچ کر ہنستا۔ احمد، جو پہلے کام سے تھک کر آتے تھے تو چپ چاپ سو جاتے تھے، اب گھر آتے ہی آواز لگاتے، میرا شہزادہ کہاں ہے؟ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ عامر دوڑ کر اپنی تتلاتی زبان میں ابا ابا کہتا ہوا ان سے لپٹ جاتا۔ احمد اسے کندھوں پر بٹھا کر پورا محلہ گھماتے۔ لوگ کہتے، ارے احمد، یہ تو تمہارا خون نہیں ہے، اتنا لاڈ مت کرو۔ احمد مسکرا کر کہتے، خون کا رشتہ شریر کا ہوتا ہے، اس کا اور میرا رشتہ روح کا ہے۔ پہلی عید اور مدرسے کا پہلا دن وقت بیتتا گیا۔ عامر 5 سال کا ہو گیا۔ وہ دن زینب کے لیے سب سے بڑا تیوہار تھا جب عامر نے پہلی بار قرآن کا قاعدہ ہاتھ میں لیا۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، نیا کرتا پجامہ پہنایا اور ماتھے کو چوم کر کہا، میرے لال، تو بڑا ہو کر ایسا انسان بننا کہ دنیا تیرے ماں باپ کو دعا دے۔ زینب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ راتوں کو جب عامر کو ڈر لگتا تو وہ اسے سینے سے لگا کر آیت الکرسی پڑھتی رہتی۔ عامر کو ذرا سی کھرونچ بھی آتی تو زینب کی جان نکل جاتی۔ وہ اکثر کہتی، اللہ، میری عمر بھی میرے بیٹے کو لگا دینا۔ دھیرے دھیرے یا اس گھر میں یہ بات کوئی یاد ہی نہیں رکھتا تھا کہ عامر ان کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ ماں کی ممتا نے خون کے ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عامر ہی ان کی صبح تھی اور عامر ہی ان کی شام۔ انہوں نے اپنی ایک ایک پائی جوڑ کر عامر کی ہر ضد پوری کی۔ خود روکھی روٹی کھاتے، لیکن عامر کے دسترخوان پر گوشت اور دودھ کی کمی نہ ہونے دیتے۔ عامر اب ایک گبرو جوان بن رہا تھا۔ اس کا قد اونچا، چہرہ نورانی اور ویوہار میں نرمی تھی۔ اسے دیکھ کر زینب اور احمد کا سینہ گرو سے چوڑا ہو جاتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس اولاد پر وہ اپنی جان چھڑک رہے ہیں، وقت کی آندھی اسے ان سے دور لے جانے والی ہے۔ وقت پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ عامر اب ایک نوجوان بن چکا تھا۔ وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور کام کاج میں ہوشیار تھا۔ احمد نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر عامر کا ایک اچھا کاروبار شروع کروا دیا۔ اب باری تھی عامر کا گھر بسانے کی۔ زینب نے بہت ارمانوں سے اپنے بیٹے کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا۔ لڑکی کا نام
शबनम था। वह देखने में बेहद हसीन थी, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर, घमंड कूट कूट कर भरा था। वह एक अमीर घराने की नहीं थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें शहजादियों वाली थीं। जैनब को लगा कि घर आकर सुधर जाएगी, और आमिर की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। धूमधाम से शादी हुई। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। शबनम ने मीठी बातों से आमिर को अपने वश में कर लिया। आमिर अपनी बीवी की खूबसूरती और बातों में ऐसा खोया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप धुंधले दिखाई देने लगे। धीरे धीरे शबनम का असली रंग सामने आने लगा। उसे जैनब का खांसना बुरा लगता, अहमद का नसीहत देना उसे चुभता। एक दिन शबनम ने आमिर से कहा, ये बुढ़े बुढ़िया दिन भर घर में खट्टर पटर करते रहते हैं, मेरी आजादी छिन गई है। और वैसे भी ये तुम्हारे सगे माँ बाप थोड़ी हैं, इन्होंने तो तुम्हें उठाया था। आमिर यह सुनकर सन्न रह गया, लेकिन बीवी की मोहब्बत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने खामोशी इख्तियार कर ली, और यही खामोशी शबनम की ताकत बन गई। और मां का वनवास अब घर में रोज का क्लेश शुरू हो गया था। इसी दुख और तनाव में बीमार होकर अहमद का इंतकाल हो गया। अब जैनब बिल्कुल अकेली पड़ गई। पति के जाने के बाद बेटे का सहारा था, लेकिन बेटा तो अब बीवी का गुलाम था। शबनम अब खुलकर जैनब पर जुल्म करने लगी। वह उन्हें बासी खाना देती, कभी कभी तो वह भी नहीं देती। घर के सारे काम, झाड़ू, पोंछा, बर्तन उस बूढ़ी जान से करवाती। जैनब की कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, लेकिन वह उफ तक न करती। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो कहीं बेटा और बहू में झगड़ा ना हो जाए। एक दोपहर की बात है, आमिर काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। शबनम घर पर अकेली थी और अपनी सहेलियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। उसने जैनब को चाय लाने को कहा। कमजोरी की वजह से जैनब के हाथ कांपे और प्याला शबनम के कीमती कालीन पर गिर गया। शबनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव बूढ़ी जैनब को बालों से पकड़कर घसीटा। डायन, मेरा कीमती कालीन खराब कर दिया, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और ऊपर से नुकसान भी करती है। जैनब रोती रही, बेटी गलती हो गई, माफ कर दे। लेकिन शबनम के सिर पर शैतान सवार था। उसने डंडे से उस कमजोर मां को मारना शुरू कर दिया। जैनब चीखती रही, अल्लाह के वास्ते मत मार, मैंने तुझे बेटी माना है। मगर शबनम ने एक न सुनी। उसने जैनब को धक्के मारकर घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। आज के बाद इस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी, जा मर जा कहीं जाकर, शबनम चिल्लाई। बूढ़ी जैनब दरवाजे पर सिर पटकती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शाम हो गई, रात हो गई। भूखी प्यासी मां फटे कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए, लड़खड़ाते कदमों से सड़क की तरफ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। दिल से एक आह निकली, लेकिन जुबान से बद्दुआ नहीं दी। भटकती रूह और फरिश्ते। जब आमिर 2 दिन बाद वापस आया तो उसने मां को घर में न पाकर शबनम से पूछा। शबनम ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झूठ बोल दिया, क्या बताऊं जी, अम्मा जी का दिमाग फिर गया था। मैंने रोका भी, लेकिन वो किसी गैर मर्द के साथ बात कर रही थी। मैंने टोका तो मुझे गालियां देकर खुद ही घर छोड़कर चली गई। कह रही थी कि अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। आमिर को झटका लगा, लेकिन उसने अपनी बीवी पर अंधा यकीन किया। उसने मां को ढूंढने की झूठी कोशिश की और फिर अपनी रंगीन दुनिया में मगन हो गया। उधर जैनब दर दर की ठोकरें खा रही थी। कई दिन बीत गए। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। एक दिन वह भीषण गर्मी में सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त वहां से एक शानदार गाड़ी गुजरी। गाड़ी में एक रईस जोड़ा बैठा था, हाजी उस्मान और उनकी बेगम आयशा। ये शहर के सबसे अमीर और नेक दिल लोग थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने गाड़ी रुकवाई। आयशा ने दौड़कर जैनब को पानी पिलाया। उनकी हालत देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वे जैनब को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने आलीशान महल जैसे घर ले गए। वहां जैनब की खूब सेवा की गई। जब जैनब को होश आया और उसने अपनी कहानी बिना बेटे की बुराई किए बताई, तो उस्मान और आयशा ने फैसला किया कि यह मां अब यहीं रहेगी। उस्मान ने कहा, मां जी, हमारे घर में दौलत है, लेकिन बड़ों का साया नहीं है। आप यहां मालकिन बनकर रहें। जैनब को वहां वो इज्जत मिली जिसकी वो हकदार थी। मकाफत अमल करने का फल कहते हैं। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। इधर जैनब को सुकून मिला, उधर आमिर और शबनम की जिंदगी में भूचाल आने वाला था। जिस कारोबार पर आमिर को नाज था, उसमें अचानक भारी नुकसान हो गया।
उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया और सारी रकम लेकर भाग गया। आमिर सड़क पर आ गया। घर, गाड़ी, जेवर सब कुछ कर्ज चुकाने में बिक गया। अब वे एक छोटे से टूटे फूटे मकान में किराए पर रहने लगे। खाने के लाले पड़ गए। शबनम, जिसे ऐश व आराम की आदत थी, अब भूख और गरीबी से पागल होने लगी। वह रोज आमिर से लड़ती, तू ना मर्द है, खाने को नहीं ला सकता तो शादी क्यों की? तेरे उस मनहूस मां बाप की वजह से यह सब हो रहा है। वह अब आमिर पर भी हाथ उठाने लगी। वही शबनम जो जैनब को मारती थी, अब आमिर को नोचती, खसौटती। आमिर को अब अपनी मां याद आती। उसे वो दिन याद आते जब उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी। उसे एहसास होने लगा कि यह सब उसी जुल्म की सजा है। एक दिन हालात इतने बदतर हो गए कि घर में एक दाना भी नहीं बचा। 2 दिन से दोनों भूखे थे। शबनम ने चिल्लाकर आमिर से कहा, जाओ कहीं से भी खाना लाओ, चाहे भीख मांगो, वरना मैं मर जाऊंगी। भिखारी बना बेटा। और मिलन आमिर, जो कभी शहर का नामी व्यापारी था, आज फटे पुराने कपड़ों में बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ सड़कों पर निकला। भूख ने उसकी सारी शर्म खत्म कर दी थी। चलते चलते वह शहर के पौश इलाके में पहुंच गया। वहां हाजी उस्मान की कोठी के बाहर लंगर आम गरीबों के लिए खाना चल रहा था। भूख से मजबूर आमिर भी कतार में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। खाना बांटने वाली कोई और नहीं बल्कि रेशमी लिबास पहने, नूरानी चेहरे वाली उसकी अपनी मां जैनब थी। जैनब रोज गरीबों को खाना बांटती थी। जैसे ही आमिर ने हाथ फैलाए, जैनब को उन हाथों पर बचपन का एक निशान दिखा। मां का दिल धड़क उठा। उसने चेहरा ऊपर उठाने को कहा। आमिर ने नजर उठाई और पत्थर का हो गया। सामने उसकी मां थी, लेकिन वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। अम्मा, आमिर के मुंह से बस इतना निकला और वह वहीं कदमों में गिर पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मैंने तुम्हें बहुत सताया। जैनब ने उसे पहचाना और कलेजे से लगा लिया। मां तो मां होती है, सारी नफरत, सारा दर्द आंसुओं में बह गया। जैनब ने उसे उठाया और चुप कराया। आमिर ने बताया कि शबनम भूखी मर रही है। जैनब ने हाजी उस्मान को सब बताया। उस्मान ने कहा, मां जी, यह आपका बेटा है, इसे ले आइए और उस बहू को भी ले आइए, शायद अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी हो। आमिर खाना और कुछ पैसे लेकर शबनम के पास पहुंचा और उसे लेकर हवेली आया। जब शबनम ने उस आलीशान महल को देखा और बीच में जैनब को एक ऊंचे तख्त पर बैठे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शबनम, जो कभी घमंड में चूर थी, आज फटे हाल में अपनी सास के सामने खड़ी थी। उसे अपना किया याद आया। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। वह दौड़कर जैनब के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी, मैं जानवर बन गई थी। जैनब का दिल पसीज गया। उसने शबनम को उठाया और गले लगाया। जैनब ने कहा, बहू, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना यह सब अल्लाह का इंसाफ था। अब तौबा करो और नेक बनो। हाजी उस्मान और आयशा ने उन दोनों को भी अपना लिया। शबनम पूरी तरह बदल गई। अब वह घर के काम और सास की खिदमत अपनी खुशी से करती थी। आमिर ने फिर से मेहनत शुरू की। उस घर में अब सिर्फ सुकून और अल्लाह की रहमत थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपकी आंखों में आंसू लाए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर औलाद को माँ बाप की कद्र समझ आए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और जज्बाती और सबक देने वाली कहानियां लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। कमेंट में मां लिखना न भूलें।